Hello everyone, this is for class 10. We are continuing with the chapter life processes. We were discussing transportation system in human beings. Now let's continue with that. देखो हमने प्रीवियस पार्ट में पार्ट बाय पार्ट देखा है कि ब्लड कहाँ से कौन से चेम्बर में से कौन से चेम्बर में जाता है, वो हमने देखा है, राइट? मतलब हमने पढ़ा है कि लंग्स से, राइट, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चेम्बर में आता है, लेफ्ट एट्रियम में. इसका मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है, राइट? तो वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है. हमने सिर्फ फ्लो चार्ट के फॉर्म में वन बाय वन हमने ब्लड का फ्लो देखा है कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से वेंट्रिकल में से थ्रू एओर्टा to body parts, then from body parts to through this artery, right, to different body parts, right, through capillaries, और capillaries में वापस deoxygenated blood आता है और फिर through vena cava what happens, it goes to right atrium, from right atrium it goes to right ventricle से through pulmonary artery it goes back to the lungs, and this is nothing but a deoxygenated blood where purification process will take place. अब हम एक साथ देखते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड में एक्चुअली क्या होता है. नाउ लेट्स सी दैट. सी, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बाय पल्मोनरी वेन. यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तभी राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे ये जो राइट एट्रियम में वहां पे क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द अपर वेना कावा एंड लोअर वेना कावा, राइट. यूज्ड अप ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. होगा क्या, एट्रिया रिलैक्स. अब ये रिलैक्स मोड में क्यों है, क्योंकि उनमें ब्लड आ रहा है कहीं से, राइट. सो रिलैक्स मोड में है एंड दिस रिलैक्स्ड कंडीशन इज कॉल्ड एज डायस्टोली. जब ये जो दो चेम्बर्स रिलैक्स्ड मोड में है, रिलैक्स्ड मोड में मतलब जब ब्लड फिल हो रहा है उसमें, यहाँ पे फिल हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम लंग्स, राइट. और यहाँ पे कहाँ से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो फिलिंग हो रहा है ब्लड का, भर रहा है वहां पे ब्लड, राइट. सो बोथ दीज एट्रियम आर इन रिलैक्स्ड मोड एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायस्टोली. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, राइट. एट्रिया आर सेड टू बी इन अ सिस्टोली कंडीशन. अब होगा क्या, एक बार यहाँ पे ब्लड भर फिलअप हो जाने के बाद दे विल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ लेफ्ट एज वेल एज right atrium, right. They will contract, right, and the blood will be pushed in the ventricles. So this as they get contracted, that condition is called as systole. मतलब हमने दो conditions देखी, एक देखी है डायस्टोली, दूसरी देखी है सिस्टोली, राइट. डायस्टोली मतलब expanded condition और expanded form, right, and systole is contraction, right. Then the blood from left atrium is passed to left ventricle through the opening guarded by, what is this valve called as, this is bicuspid valve. This valve is called as bicuspid valve, right. Similarly, the blood from right atrium is passed to right ventricle. The opening is guarded by tricuspid valve. This valve between right atrium and right ventricle is called as tricuspid valve, right. Both the ventricles relax while receiving the blood from the atria. Now as these ventricles are getting filled up by blood, they are getting expanded, right, while receiving the blood from atria. Now next, both the ventricles contract. Now initially these ventricles were filled up by blood, now they will contract, right. Both these bicuspid and tricuspid valves close so that blood can't move back to atria, right. They can't move, the blood cannot move back to atria, right.
Then oxygenated blood from left ventricle is passed to the body by aorta, right? And deoxygenated blood from right ventricle is passed to lungs for oxygenation, right? So from right ventricle it goes to lungs through pulmonary artery. So I hope diastole and systole condition are clear to you. When atria relaxes while receiving the blood, when they expand, right? So that condition is called as diastole, and when they contract, right? So that condition is called as systole condition. Okay. Now one more thing for your information. See, when the bicuspid and tricuspid valves get closed, to prevent the backflow of blood from ventricles into auricles, lub sound is produced, right? When semilunar valves get closed to prevent the backflow of blood into the ventricles, dub sound is produced. What are these semilunar valves? See, between this ventricle and aorta, one valve is present over here also, and between right ventricle and here, right, the deoxygenated which goes from this right ventricle through pulmonary artery to lungs, one valve is present over here also. So these two valves are called as semilunar valves. So they prevent backward flow of blood from aorta to the ventricles, right? So dub sound is produced at that time. So doctors get clues about the condition of our heart by listening to the heartbeat through a stethoscope. I hope you know what is a stethoscope. A faster heartbeat is indicative of fever. अगर हार्टबीट बहुत फास्ट हो गई है, नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 72 to 80 होता है, राइट, दैट वी नो. अगर ज्यादा हाई है, फास्टर हार्टबीट है, तो इट इज इंडिकेशन ऑफ फीवर और हाइपरटेंशन, right? Whereas a slower heartbeat indicates poor health, right? So this is for your information. Now let's see heart in different organisms. Birds and mammals, ये class 9 में हमने पढ़ा है. Birds and mammals have 4 chambered heart. Okay. Amphibians जो होते हैं, जैसे frog या toads होते हैं, right? उनमें 3 chambered heart होता है, and fish में it is 2 chambered heart. अब देखिए, in birds and in mammals, right, in vertebrates we can say, what happens, there is a separation of right and left sides of the heart, right? दो साइड्स है, एक लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड होती है, और उनमें सेपरेशन होता है, सो दैट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, right? Why is it so? See, such a supply is useful for animals which have to use energy constantly to maintain their body temperature, like birds and mammals. देखो, ब्लड का एक फंक्शन क्या होता है? टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, राइट? ये उनका काम है. हमारे बॉडी का एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, वो कौन मेंटेन करके रखता है? ब्लड इज मेंटेनिंग दैट टेम्परेचर. तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड तो होना ही चाहिए टू मेंटेन, टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, and which is so in birds and in mammals, right? Whereas there are animals which do not use energy to maintain their body temperature, and their body temperature varies with environmental temperature, like amphibians, right? देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे एम्फीबियंस, जिनको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली. हमारा ऐसा नहीं है, सराउंडिंग टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारे बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होता है, राइट? तो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे हार्ट में सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का. वेराज ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे एम्फीबियंस है, उनमें
सराउंडिंग टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर का कुछ भी लेना देना नहीं होता है. सो एम्फीबियंस हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट some mixing of oxygenated and deoxygenated blood. एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है और उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग भी होता है. वेरएस फिश जो होती है, फिश हैव ओनली 2 चेम्बर्ड हार्ट, राइट. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, sorry, the deoxygenated blood is pumped to the gills where it is oxygenated and directly passed to the body parts. देखिए होता क्या है, फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट. अब होता क्या है, फिश में जो हार्ट होता है फिश का, वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको पंप करता है, राइट. पंप करने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गिल्स में पहुंचता है. गिल्स में ट्रकिया होते हैं, हमने पढ़ा है फिश का स्ट्रक्चर कैसा होता है गिल का. गिल स्लिट्स होती है, राइट. अंदर ट्यूब्स होता है और उसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती है, राइट. तो होता क्या है, जब एक बार हार्ट ने पंप कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम टू द गिल स्लिट्स, right, or and during respiration what happens, through water, the oxygen which is dissolved in water वो उनके मुंह में से अंदर जाता है, उनके गिल स्लिट्स तक पहुंचता है. अंदर जो ट्रकियल ट्यूब्स होता है वहां पे गैशियस एक्सचेंज होता है थ्रू डिफ्यूजन, राइट. और CO2 जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो CO2 है वो पानी में से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और उसमें जो मुंह में से उन्होंने ऑक्सीजनेटेड जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में आ जाता है, राइट. और डायरेक्टली अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो एक्सचेंज हुआ है गैसेस का इन द गिल स्लिट्स, राइट, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, राइट. वो वापस हार्ट के तरफ नहीं जाता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस हार्ट के तरफ फिशेस में नहीं जाता है. हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, गिल्स में आता है, गिल्स में गैस एक्सचेंज होता है. क्या गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 निकल जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में ऐड हो जाता है और वो ब्लड डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, राइट. सो in fishes blood is passed only once to the heart in one circulation. सिर्फ एक ही बार हार्ट पंप करता है, वापस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है. लेकिन इन ह्यूमन बींग्स व्हाट हैपन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास्ड टू हार्ट थ्रू हार्ट. ओके, देखिए हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टू द लंग्स, देन इट इज ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स. यहाँ पे वापस वही है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वो CO2 थ्रू एक्सहेलेशन बाहर निकल जाता है, एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बैक टू द हार्ट. अब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है वो वापस हमारे हार्ट में आता है और हार्ट उसको पंप करता है, राइट. From heart, oxygenated blood is passed to all body parts. Thus, blood flows twice in heart during each cycle. This is known as double circulation. राइट, तो हमें डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है क्योंकि देखो 2 बार ब्लड जाता है हार्ट में से, पंप होता है 2 बार. कैसे, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है हार्ट टू द लंग्स, फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है और हार्ट में से बॉडी पार्ट्स में जाता है. मतलब एक साइकिल में 2 बार हार्ट में आया, एक बार हार्ट से गया, एक बार हार्ट में आया, 2 बार हुआ है. और इस सिस्टम को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम. तो वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है. One more topic is remaining, which is how to measure a blood pressure. Okay, all of you must have seen an instrument which is used to measure blood pressure. It is also called as sphygmomanometer, which we call as BP apparatus, blood pressure apparatus. Also, that instrument is also called as sphygmomanometer, right? This instrument is called as sphygmomanometer. Now what happens?
Now, what is blood pressure? The force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. Right? अब होता क्या है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट, उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत तेजी से पंप होता है टू ऑल बॉडी पार्ट्स. राइट, हमने ये भी पढ़ा है कि वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक भी होती है क्योंकि अंडर प्रेशर वो काम करती है. राइट, सो नाउ दिस प्रेशर, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये दिस इज नथिंग, दैट इज नथिंग बट अ फोर्स that blood exerts against the wall of vessels. Now this pressure is much greater in arteries than in veins. अब ये क्योंकि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो कंपैरेटिवली थिक होती है एज कंपेयर टू वेन्स. क्यों? क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है इन आर्टरीज देन इन वेन्स. राइट, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी during ventricular systole, that is contraction, is called systolic pressure. Right, and pressure in artery during ventricular diastole, that is relaxation, is called diastolic pressure. अब देखो ये काम कैसे करता है. अब ये स्पिग्मोमैनोमीटर के पार्ट्स पहले देख लेते हैं. उसमें देखो एक इन्फ्लेटेबल बैग होता है कफ जैसा, राइट, जिसको हम प्रेस करके ये जो कफ लगाया हुआ है, राइट, उसको हम लोग इन्फ्लेट करते हैं. राइट, देन वन बल्ब इज देयर जिसको हम लोग प्रेस करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज, दिस ब्लू कलर्ड इज कॉल्ड एज कफ, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज बल्ब, रबर, राइट, जिसको हम लोग पंप करके इसको इन्फ्लेट करते हैं. देन one screw is over here. This screw is for releasing pressure. प्रेशर कम करने के लिए स्क्रू का यूज करेंगे. एंड अ मर्क्यूरी मैनोमीटर, दिस इज अ मर्क्यूरी मैनोमीटर. इसके अंदर जैसे थर्मोमीटर में मर्क्यूरी भरते हैं वैसे इसके अंदर मर्क्यूरी भरा होता है. एंड टू रबर ट्यूब्स कनेक्टिंग द बल्ब, 2 रबर ट्यूब्स है, एक कनेक्टेड टू द बल्ब है एंड मैनोमीटर विथ कफ, और एक मैनोमीटर को कनेक्टेड है. तो ये है स्पिग्मो मैनोमीटर के कुछ पार्ट्स. अब मेजर कैसे करेंगे? सी, दिस कफ इज रैप्ड अराउंड द अपर आर्म एंड इज रैपिडली इन्फ्लेटेड विथ अ हैंड पंप. नाउ दिस इज लाइक अ हैंड पंप, हम उसको इन्फ्लेट करेंगे, राइट, पंप करके. अब होगा क्या, जब ब्लड जो है अंडर प्रेशर जब फ्लो होता है तो उसमें से साउंड निकलता है because it is flowing under pressure. So the sound of blood flow can be heard through a stethoscope. Right, you can see this stethoscope. आप यहाँ लगा के देख सकते हो, आपको जो फ्लो होता है ब्लड उसकी आवाज सुनाई देगी. Then this sound of blood rushing through the arteries at peak pressure is due to ventricular contraction. देखिए हमने क्या किया है, इसको पंप करके ये जो कफ है इसको इतना इसका प्रेशर बढ़ाया हुआ है, जो अल्टीमेटली किसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ये जो आर्टरी है, दिस आर्टरी, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है. राइट, और प्रेशर डाल रहा है जिसके वजह से क्या होगा कि ब्लड, यहां से जो ब्लड आता है वो क्योंकि फ्लूइड है, जब फ्लो होगा और इसकी वॉल्स के ऊपर हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं, राइट, तो जब ब्लड अंडर प्रेशर फ्लो करेगा, राइट, सो इट इज गोइंग टू एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दिस आर्टरी, राइट. और वो तो मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, इट इज 120 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, राइट. और ये आवाज कब आती है, जब वेंट्रिकल जो होता है, राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ये आवाज आती है, राइट. सो दिस तो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है वेंट्रिकल, तो वो कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक कंडीशन बोलते हैं, राइट. कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक कंडीशन, राइट. तो वो जो अपर प्रेशर रहेगा, अपर वाला प्रेशर, वो होगा 120 mm ऑफ Hg, और उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में है,
राइट। कॉन्ट्रैक्ट, आप सोचिए कॉन्ट्रैक्ट जब होगा सबसे ज्यादा प्रेशर डालेगा वो ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी, विथ ग्रेट फोर्स इट इज गोइंग टू पंप द ब्लड कॉन्ट्रैक्शन फेज में, इसीलिए उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हमको अपर लेवल मिल गया है, अब हमको लोअर लेवल निकालना है, तो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट रिलीजिंग द प्रेशर, कम करेंगे प्रेशर, तो कफ का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, राइट। तो द साउंड फेड्स अंटिल इट स्टॉप्स, तो जो प्रेशर, ब्लड अंडर प्रेशर फ्लो हो रहा था जिसके वजह से साउंड आ रहा था, तो धीरे 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 जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये साउंड भी फेड होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा आवाज, राइट। सो द रीडिंग इंडिकेट्स, तो और एक रीडिंग मिलेगा हमको लोअर वाला, right, so that reading indicates the diastolic blood pressure which is nothing but 80 mm of, ये देखिए 80 mm of mercury, right, so that वो diastolic क्योंकि तब जो ventricles होंगे, right, तो उसमें तो एट्रियम से ब्लड फिल होने का टाइम है ये, right, मतलब वेंट्रिकल एक्सपांडेड फॉर्म में है, राइट, एक्सपांड हो चुके हैं, और इसीलिए मिनिमम प्रेशर डाल रहे हैं वो आर्टरी के ऊपर, तो वो जो लोअर लिमिट होगा दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक। एक्सपांडेड फॉर्म में मतलब वो डायस्टोलिक होगा, राइट, और कॉन्ट्रैक्शन फेज में है तो उसको हम लोग सिस्टोली बोलते हैं, राइट, सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो लोअर वाला मिलेगा वो मिलेगा हमको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विच इज नथिंग बट 80 mm of Hg। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज 120/80। ओके, लिखते हैं 120, सॉरी दिस इज 120/80 ऐसे लिखते हैं। दिस इज हायर, दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दिस इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो दिस इज ऑल अबाउट measuring blood pressure. We will be talking about the other parts of our circulatory system in the next video. Thank you for now.